Good afternoon student, welcome back to my YouTube channel. Today I am here with topic related to class 9 lines and angle. So today I will discuss the basic things of the angles, its measurement process, so that you can know what are the angles, what are the basic types. Today I will not discuss about the types of angle, that is acute angle, obtuse angle, whatever be that, because I know that all of these things are related and well known of you. So let's see how I am going to describe these things. First, angles. First, angles. What is the definition of angles? When you go to the book and see the definition, you will see when two rays have common endpoint, an angle formed. This is the basic thing. When two rays have common endpoint, an angle formed. So this one. What is angle is that when two rays have common endpoint, an angle formed. When two rays have common endpoint, so it will be something like that. It look like this one. Suppose one ray is this one, second ray is this one. This is A, this is B, this is O. This is the angle. So initially this ray is called initial ray. This is called terminal ray. because क्यों ऐसा बोला जा रहा है, आप यहाँ पे थ्रेड बांध करके, अगर आप इमेजिन कीजिए कि हम यहाँ पे थ्रेड बांध करके और यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, तो यहाँ आपका इनिशियल पॉइंट होगा, इसलिए आपका ये इनिशियल हो गया रे, यहाँ पे आकर के रुक गए, टर्मिनेट हो गया, तो इसीलिए आपका ये इसका जो नाम आया वो टर्मिनल रे आया। अब नाउ सी व्हाट आर द मेजरमेंट प्रोसेस, कितने तरह से एंगल को मेजर किया जाता है। मेजरमेंट प्रोसेस, मेथड ऑफ एन एंगल। एक एंगल को हम लोग तीन तरह से मेजरमेंट करते हैं। एक फॉर्म में है डिग्री फॉर्म में, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मेथड। यहाँ एंगल जो होगा वो डिग्री फॉर्म में मेजरमेंट होगा। दूसरा है एंगल जो होगा वो रेडियन में मेजरमेंट होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्साडेसिमल मेथड। ठीक है, तीसरा जो होगा वो एंगल जो होगा वो ग्रेड में होगा, मेजरमेंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटीसीमल मेथड। तीन तरह से हम लोग एंगल को मेजरमेंट करते हैं। पहला सर्कुलर मेथड, जिसमें हम लोग एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। दूसरा रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। तीसरा हम लोग ग्रेड में मेजरमेंट करते हैं। एक एंगल को तीन तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर इन एंगल 3 टाइप। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, और अगर आपने नहीं देखा होगा, यू हैव नॉट सीन, देन यू विल डेफिनेटली सी इन योर हायर सेक्शन दैट व्हाट आर द एंगल मेजरमेंट प्रोसेस। अब ये कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मेथड की। इसे हम लोग क्या करते हैं, वी विल ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, देन वी विल डिवाइड दिस सर्कल। फर्स्ट है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस ऑफ रेडियस r। दूसरा है आपका डिवाइड दिस सर्कल इनटू 360 पार्ट्स, something like that, okay। Now see this one, we will divide this circle into 360 equal parts,
into 360 degree equal parts. Now see third one. What will be the third one? Third one is value of one part. Out of 360 equal parts. What will be the value of this one? Is 1 by 360. This one is called 1 degree. इसी तरह से 2 by 360 is called 2 degree. 3 by 360 is called 3 degree. 4 by 360 is called 4 degree. 5 by 360 is called 5 degree. 90 by 360 is called 90 degree. This is the process in the degree. Further, suppose this is the sector of 1 degree. Now see this one. Suppose this is the sector of 1 degree. What we will do this one? As we know that this is value of this one is 1 degree. Further we will divide this sector into 60 equal parts. Second, third, fourth. Further we divide sector of 1 degree into 60 equal parts. 60 equal parts में उसको डिवाइड करेंगे. Then 1 by 60 degree will be called 1 minute. So you can say that 1 degree is equal to 60 minute के लिए हम लोग एक डैश डालेंगे. और as you know that फिर further 1 minute divided into 60 equal parts. So 1 second. So 1 by 60 minutes is equal to 1 second. You can say that 1 minute is equal to 60 seconds. So as यहाँ से हम लोगों को एक बात पता ये चल रहा है कि हम लोग जो है वो डिग्री का मेजरमेंट जो है मिनट सेकंड तक लेके जा सकते हैं. सपोज करो अब ना इसी हिसाब से देखो यहाँ 30 डिग्री है मान लो. इसको मुझे डिग्री मिनट और सेकंड में बदलना है. डिग्री मिनट और सेकंड में मुझे बदलना है. तो व्हाट वी विल डू दिस वन. अगर 30 डिग्री है तो मुझे डिग्री मिनट और सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा. व्हाट वी विल डू. तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री ही चाहिए हमको कन्वर्ट करने के लिए मिनट में. यहाँ से 1 डिग्री माइनस करो तो 29. जो 1 डिग्री माइनस किए उसको आप मिनट में कन्वर्ट कीजिए तो देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं. तो यहाँ 60 हो जाएगा. लेकिन हमको फर्दर यहाँ जाना है तो एक मिनट इसमें से माइनस करेंगे और उसे 1 मिनट को कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में. और अगर मान लो इसी तरह से अगर हमको 30 को सिर्फ डिग्री और मिनट में ही रहना पड़ता तो मेरा आंसर होता 29 और 60. 29 डिग्री 60 मिनट. ये आपका प्रोसेस होगा. सिमिलरली सपोज करो अगर मुझे 90 डिग्री को चाहिए चेंज करना है. आई वांट टू चेंज 90 डिग्री इनटू डिग्री मिनट सेकंड. डिग्री मिनट एंड सेकंड. देन आई विल डू दिस वन. 90 में से 1 माइनस करेंगे 89. यहाँ 59 और ये हो जाएगा 60. ये आपका मेथड होता है डिग्री मिनट और सेकंड में जाने के लिए. अब चलिए अब हम लोग एक चीज़ करते हैं. एक और रिलेशन बनाते हैं. ये बहुत काम का रिलेशन है. जब भी चाहोगे रिलेशन between degree, radian and grade. कैसे आप डिग्री से रेडियन से ग्रेड से डिग्री में आ सकते हैं. दैट रिलेशन इज कॉल्ड समथिंग. d by 90 is equal to 2r by pi is equal to d by 100. Here d represent degree, r represent grade, g represent grade, r represent D represent degree, R represent radian, G represent grade. This is the rule. अब इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन कन्वर्ट करके बताता हूँ जिससे कि आप लोग उसको आसानी से समझ जाएंगे. ठीक है. आइए चलिए मैं देखना चाहता हूँ क्या कि 45 डिग्री जो है 45 डिग्री कितना रेडियन होता है. डिग्री को रेडियन में जाना.
तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे d by 90 इज इक्वल टू 2r by 5। नाउ d की जगह पे 45 रख दीजिए। 45 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 2r by 5। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 इज इक्वल टू 2r by 5। क्रॉस करके 5r की वैल्यू निकाल लीजिए। 5/4 इज इक्वल टू r। 5/4 रेडियन इज इक्वल टू r, और रेडियन का सिंबल होगा c। ठीक है, इसी तरह से सपोज करो अगर आपको चाहिए 2π/3 किसकी वैल्यू है डिग्री में, तो हम लोग फिर से चलेंगे d by 90 इज इक्वल टू 2r by 5। दिस टाइम वी विल पुट द वैल्यू ऑफ r, so 2/pi into what is the value of r, that is 2π/3। pi से pi cancel, so d by 90 is equal to 4/3। now d is equal to 4/3 into 90, 30। so d is equal to 30 for the 120 degrees। this is the value। you can find this value any value you can convert any value in degree and radian and grade also। see if you want to see that grade में क्या वैल्यू आती है, now you can go for the grade also। suppose हमको जाना है, देखना है, चेक करना है कि 75 डिग्री कितना ग्रेड होता है, ग्रेड में जाना। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे d by 90 इज इक्वल टू g by 100। now we will do this one, 75 divided by 90 is equal to g by 100। now इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 15 से जाएगा, 5/6 इज इक्वल टू g by 100। तो 100 into 5, 500 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू g। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 250 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेड, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। 2 से काट देंगे इसको, 250 डिवाइडेड बाई 3, और अगर कटता तो पॉइंट में भी आ सकता है। दूसरी बात क्या है, अब एक चीज़ और भी जान लो, क्या कोई एंगल निगेटिव हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। एंगल हमेशा जो है वो ड्रॉ करना है एंटी क्लॉकवाइज। एंगल के लिए जो रूल बनाया गया है वो है एंटी क्लॉकवाइज जाना है। जब भी आपको ड्रॉ करना है एंटी क्लॉकवाइज जाना, यू हैव टू गो एंटी क्लॉकवाइज। व्हेन यू विल गो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, in that case angle will be in negative form। in that case angle will be in negative form। clockwise में जाइएगा एंगल नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज में जाइएगा एंगल पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, एंगल पॉइंट में हो सकता है, एंगल फ्रैक्शन में हो सकता है, तो इसलिए कहीं पर से कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा वो पॉइंट। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। सी दिस वन। टिल दैट हैव ए गुड डे, हैव ए गुड बाय। Keep watching my video। thanks for the supporting, thanks for watching। have a good day, God bless you, take a good care of yourself।